दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आप आनंद उठाइए। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई Pythagoras theorem in the given question. So let us enjoy the video. Here is the first question. In given figure, you can see here is a given figure, that is right triangle ABD, and ABD is a triangle right angle at A and AC perpendicular BD. Show that number 1, AB square equal to BC into BD, AC square equal to BC into DC, and third part AD square equal to BD into CD. So let us enjoy the solution of this question. Here is given that triangle ABD is a right angle at A and AC perpendicular BD. So we will write this into the given, and proof here there are three parts. So we will write one by one to prove. First part is AB square equal to BC into BD, and second part is AC square equal to BC into DC, and third part is AD square equal to BD into CD. So for proof of these three parts, we will draw a diagram according to the question. So here is given that ABD and is a triangle and right angle at A. So you can see that ABD, this is a right angle triangle, and AC perpendicular BD. So we will draw here AC, this is 90 degree, and this is also 90 degree. Okay. Now how can you prove first part, that is AB square equal to BC into BD? So you can see that here this is the first part, AB square equal to BC into BD. So we will take two triangles. Here are three triangles. This is triangle number 1 and this is triangle number 2, and whole one is a triangle number 3. So we will take it one by one. So for proving the result of 1, what to do? We will take in triangle BAC, in triangle BAC and triangle BDA. What to do in these two triangles? That is BAC, you can see that in the diagram BAC, and this is the triangle number 1, and BDA. BDA means a whole triangle. So what to do? Here is, you can see that angle B equal to angle B, this is common in both triangle. So you can write this is common. Okay. Now after that, angle ACB. ACB means this one angle, and you can say second angle BAD. This is 90 degree. So you can write this is angle ACB, and second one is angle BDA. Each 90 degree. So you can write the condition each 90 degree. So if two angles are equal in two triangles, so you can say that by AA criterion, triangle BAC just similar to triangle BDA.
and you can write here is also triangle. Okay, now if these two triangles are similar, then you can say that their sides are proportional, and according to the definition you can write it as, in these two triangles AB, you see here, this is, in this diagram, this is the base side of triangle ACB, है ना। BAC में आप देखिए ये बेस साइड है, इसको लेते हैं तो आपका हो जाएगा AB डिवाइड बाई, अब सेकेंड ट्रायंगल आपका BDA है, BDA में आप देखेंगे तो यहाँ पे बेस साइड आपका हो जाएगा BD, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का सामने जो एंगल C है 90 डिग्री है, जस्ट इन फ्रंट साइड दिस इज AB and here is the 90 degree at A, so the just in front side of angle A means this is BD, so you can write here divide by BD and equal to BC. Next one is BC, so what to do, you will write here BC. BC you can say that this is the adjacent side of making angle 90 degree, and here is you can say that this is adjacent sides and this is the adjacent side making the 90 degree, so you can write here that is AB. And when you cross multiply it, then you will get AB into AB. What to do, you will cross multiply here, that is this one and this one, so what you will get, you will get here in this question, that is AB square equal to BC into BD. So this is the first part of this question, so you can write here this part is proved. Okay, now for the second part, requirement is AC square equal to BC into DC. So AC square, AC is required in this that triangle. You will select a triangle in which AC is contained. So you will write in this, we will take is same triangle, and here is the second part, and second part is AC square equal to BC into DC. So for this requirement, what to do? Yes, you will do here, you will take two triangles in triangle ADB and triangle, next one is CDA. दोनों ट्रायंगल हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप देखिएगा कि ADB, ये हमने पॉइंट D ले लिया और B होल ट्रायंगल हो गया, और उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल लिया CDA। तो यहाँ भी हमने 90 डिग्री का जो एंगल पॉइंट A पर बन रहा है वहाँ से स्टार्ट किया, तो ADB ट्रायंगल का नाम हो गया। और यहाँ पे देखिए एंगल जो पॉइंट C है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और D आपका सेंटर में मैंने लिया है फर्स्ट ट्रायंगल में, तो सेकंड ट्रायंगल में भी D को सेंटर पे ही लेते हैं इन ट्रायंगल CDA। सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर इन दीज टू ट्रायंगल, दैट इज दिस इज द ट्रायंगल नंबर 1 एंड होल वन इज द ट्रायंगल नंबर 2। तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल D है ये आपका कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, you can write here that is angle D equal to angle D, this is common, okay। And after that what you observe, point A and point C, that is both are 90 degree, so you can write that angle ACB
angle ACB equal to angle DCA y each 90 डिग्री। तो आप ये रिजल्ट ये लिख देंगे इसका रीजन। तो आप देख रहे हैं, यू कैन सी हियर टू एंगल्स आर इक्वल इन दीज टू ट्रायंगल, सो यू कैन से दैट व्हाट दैट इज बाय ए क्राइटेरियन triangle ADB just similar to triangle CDA। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी दैट their corresponding sides are proportional, so you can write here AC So for the second part, AC square equal to BC into DC, we will take two triangle in which containing AC, that is in triangle ACB. In triangle ACB, you can write here in triangle ACB, and second triangle you will take, that is DCA, triangle DCA. Okay, because our requirement to prove that AC and DC, so we will take containing these two sides. So what to do here, you can say that is in triangle ACB and triangle DCA. So what you see in this question, ACB means this triangle number 1, and CDA, this is triangle number 2. You can see that these two small triangle, and in these two triangle you can say that angle ACB just equal to angle DCA. Why? Because each 90 degree. Okay, this is angle C left side, and this is angle C again right side in triangle number 2. So these are two triangles which are 90 degree. Angle 1 equal to angle 2. Okay, now you can observe that angle C, this is common in both. Angle C equal to angle C, that is common in both two triangle. So if you get two triangles are
two angles are equal in these two triangles, so you can say that by AA criterion, triangle ACB just similar to triangle CDA. And if these two triangles are similar, then you can say that their corresponding sides are proportional, and hence you can write here AC upon DC. AC, you see here, AC, this is the side which is making angle 90 degree in triangle number 1. This is triangle 1, means this side you can say that this one, okay. And DC you can say that this side which is again making angle 90 degree. So this one is 90 degree. So you can write this is corresponding side AC upon CD just equal to BC by AC. And now you can observe which one is BC. And BC, this is the side which is making angle 90 degree in triangle number 1, and AC which is making angle 90 degree, here you can see that this side, okay. So in these two triangle, in this equation, by cross multiplication you will get what you will get, that is AC into AC means AC square equal to BC into DC. So this is our requirement. You can write this is proved. So now for part number 3rd, we will take same triangle, and part number 3rd is AD square, that is part number 3rd, AD square equal to BD into CD. To prove that AD square equal to BD into CD. So what to do for this case? Yes, you can write N triangle ADB and triangle CDA. So what you say in triangle ADB, you can see that diagram, that is ADB. ADB means the whole triangle, and CDA, this is the triangle number 2. So in these two triangles, what to do? You can say that angle D equal to angle D, this is common in both triangle, and now angle A and angle C, this is 90 degree in both triangle. So you can write angle DAB equal to angle DCA, each 90 degree. You can write the reason why this is equal, because each 90 degree. Then you can say that by AA criterion, triangle ADB just similar to triangle CDA. And if two triangles are similar, then by the definition of similarity, you can say that their corresponding sides are proportional. That is AD upon CD. This is just equal to BD upon AD. How can you write corresponding side in this triangle? Yes, you can say here that is AD. AD means angle making 90 degree in largest triangle ADB,
and divide by CD, that is angle making 90 degree in triangle number 2, means ये वाला साइड CD, ये छोटे वाले ट्रायंगल नंबर 2 का, और ये साइड AD, ये भी 90 डिग्री बना रही है साइड, और ये भी एडजेसेंट ऑफ 90 डिग्री, एंड दिस इज एंगल एडजेसेंट ऑफ 90 डिग्री. सो यू कैन राइट that is largest triangle side, that is AD, and smallest triangle side, that is CD, which making angle 90 degree in both triangle. So AD by CD equal to BD. Can you write BD? BD means this is just in front side of 90 degree. 90 degree के सामने का side, that is hypotenuse, and divide by hypotenuse in smallest triangle. So you can say that this is in front side of 90 degree, that is AD, and here is the in front side of this is, that is means BD. So you can write BD upon BD means hypotenuse upon hypotenuse. So by the cross multiplication of this step, you will get AD into AD means AD square, and BD into CD. So you can write this is BD into CD. Okay, so this is the requirement for third part. So you can write here proof for this third part. Okay, so this is the question. Question number 2. Prove that the sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. So once again enjoy this video. In this question given that a rhombus ABCD, so you will write this into the given, and question says that sum of the squares of the sides of rhombus, means side means AB, BC, CD and AD. Therefore square and sum, so you will write it as AB square plus BC square plus CD square plus AD square equal to the sum of the square of its diagonal, and the diagonal you can say here in this diagram is AC and BD. So you can write the square of diagonal means AC square and BD square and their sum, so you will mark plus sign just between these two. So requirement to prove it that AB square plus BC square plus CD square plus AD square means these are all four sides and just equal to the sum of squares of its diagonal. So let us start the proof of this question. How can you prove? Since dear you know that very well about this, that is diagonal of rhombus bisect each other, means you can write it as OA equal to OC and OB equal to OD. Why? Because diagonal bisect each other at 90 degree, and here this is given that angle O around all, that is 90 degree. Each angle is 90 degree, that is angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4, all are 90 90 90 degree. So this is 90 and this one is also 90 and the next one is also this 90 and this is also 90. So all are 90 degree. Okay, now you can take that any one triangle and use Pythagoras theorem using hypotenuse. So what to do? You will take in triangle OAB, otherwise AOB, in triangle AOB by Pythagoras theorem. You write this just here, by Pythagoras theorem.
So what you write? Because this angle 3 is 90 degree, so AB is the hypotenuse. You can write that hypotenuse square means AB square equal to sum of square of the other two sides, that is OA and OB. So you will write as OA square plus OB square, and this is the equation number 1. Okay, similarly you will take in triangle, second one, that is in triangle BOC. In BOC angle 4 is 90 degree, so just in front side means this one side is hypotenuse, so you can write that is a BC square equal to OB square plus OC square. So this is the equation number 2. After that again in triangle, third one, that is which containing side BC, जिसमें आपका साइड BC आ रहा है, उस साइड को हम लेंगे. तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा साइड आ रहा है, साइड आ रहा है BC. तो BC के लिए हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल COD, in triangle COD, and you can see that this one side, that is this side CD, is the hypotenuse in diagram. So you will take this is CD square equal to OC square plus OD square. So this is the equation number 3. Now again you will take the last triangle, that is triangle AOD. So you will write in triangle AOD, in triangle AOD, by Pythagoras theorem you will get that is AD square equal to what side here? You can say that OA and OC, this side and this side, and this is the hypotenuse. Okay, so you will take this is AD square equal to OA square plus OD square, and this is the equation number 4. Now on adding equation, on adding all these equations, what you get equations, आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड में देखिए तो क्या है, फर्स्ट वन इज AB स्क्वायर, सेकेंड वन इज BC स्क्वायर, एंड सेकेंड वन इज CD स्क्वायर, दिस CD स्क्वायर, एंड AD स्क्वायर, this is BC square, and this is AB square. So this is in left hand side, so you will take here AB square plus BC square plus CD square plus AD square. In the right hand side what you will get? Right hand side you will see here this first pair, this one is OA square and OB square. So you will write here OA square and OB square. And plus next pair in second number 2, OB square plus OC square. This is OB square plus OC square. And the equation number 3rd, here you can see this is underlined OC square plus OD square. So you will write OC square plus OD square. And after that equation number 4, here you can see that this is again plus OA square plus OD square. ओके डियर, समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से इसे करना है.
अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक राइट हैंड साइड में सभी डबल है। देखिए आप फर्स्ट वन हम आपको बताते हैं OA² एंड OA²। दिस इज 2 times, so you will write here 2 into OA² प्लस, फिर आप देखिए यहाँ पे OB² और OB² भी 2 times है, तो आप लिखेंगे 2OB² प्लस। ओके, आफ्टर दैट अब आप देखिएगा नेक्स्ट आपका जो है वो OC² भी 2 times है, तो आप लिखेंगे 2OC²। और फिर आप देखिएगा कि जो लास्ट में आपका दिया हुआ है वो OD भी 2 times है, एक ये है कि ये है, तो आप लिखेंगे 2 into OD²। ठीक है, वेरी नाइस। बट यू कैन से हियर इन दिस फर्स्ट लाइन that is OA equal to OC and OB equal to OD. So you replace OC by OA and OD by OB. जहाँ पे OD लिखा है वहाँ OB लिखेंगे और जहाँ OC लिखा है वहाँ OA लिखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, आइए देखते हैं। आपका राइट हैंड साइड केवल चेंज होना है, 2 into OA² ऐसे ही रहेगा और OB भी ऐसे ही लिखेंगे। OB को थोड़ा सा इस तरह से लिखिएगा, O into B², यहाँ इंटू कर लीजिए, और OC की जगह आप क्या लिखेंगे, OA, तो 2 into OA², और OD की जगह आप क्या लिखेंगे, OB, 2 into OD²। OD नहीं, क्या लिखना है, OB, तो यहाँ पे हो गया OB²। अब आप देखिए OB² भी आपका 2 times हो गया, 2 times, और इसी तरह से OA भी आपका 2A और 2A कितना हो जाएगा, 4OA है ना। तो आप इसे लिखिएगा 4 into OA² प्लस OB भी आपका 2OB कितना हो गया, 4OB²। ठीक है, तो अब आप ऐसा करिए कि इसमें 4OB कॉमन ले लीजिए, केवल 4 को कॉमन ले लीजिए, तो OA² प्लस OB² आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा डायग्राम में आइए कि OA² का वैल्यू जरा देखिए क्या है। OA का वैल्यू देखिए, OA दिस इज जस्ट हाफ ऑफ AC, चूंकि आपको पहले ही बताया था OA इक्वल टू OC, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो OA इक्वल टू हाफ ऑफ, पूरा डायगोनल क्या है, AC, तो यहाँ AC लिख सकते हो। और इसी तरह से OD की जगह पे OB की जगह क्या लिख सकते हो, OB देखिए, OB इक्वल टू हाफ ऑफ BD, तो यहाँ पे हो गया हाफ ऑफ BD। ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करिए, OA की जगह आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 into OA की जगह आप लिख दीजिए हाफ ऑफ, क्या लिखेंगे, OA किसका हाफ है, AC डायगोनल का, और ये भी है स्क्वायर में, तो आप इसे होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और OB की जगह क्या है, हाफ ऑफ BD, ये BD का हाफ है, तो हाफ ऑफ BD लिखें, और ये भी इस पे क्या लगा है, स्क्वायर, तो आप इसको भी स्क्वायर में लिखिए, और 4 आपका पूरे से कॉमन था, तो वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप देखिए कि जब 4 हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। ठीक है, और AC का स्क्वायर करेंगे तो AC² हो जाएगा, और इधर भी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और BD का स्क्वायर करेंगे तो BD² हो जाएगा, ब्रैकेट। अब आप देखो 1/4 तो कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले क्यों नहीं ले रहे, कॉमन ले लीजिए, 1/4 कॉमन आ गया। अब बचेगा क्या, AC² प्लस BD²। 4 से 4 आप देखो आसानी से कैंसिल हो गया, 4 डिनोमिनेटर में, 4 मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका क्या आएगा, AC² प्लस BD²।
ये तो राइट हैंड हुआ। लेफ्ट हैंड में आप देखिए पहले ही आ गया था, क्या आया था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो आप फाइनली रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर यू विल गेट हियर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। And this is our requirement, so you can write here hence proved. Why question says that the sum of squares of all side of rhombus just equal to the sum of squares of its diagonal. So this is the requirement of this question. Now next question number 3. D and E are the points on the side CA and CD respectively of a triangle ABC, right angled at C. Then prove that AE square plus BD square equal to AB square plus BDE square. So enjoy the solution of this question. Given that a right triangle ABC and angle C equal to 90 degree, but D and E are the points on side AC and BD. तो आप देखो ABC हमने ट्रायंगल बना लिया और ये आपका राइट एंगल है C पर, दिस इज गिवन, ओके। एंड D एंड E आप देख सकते हो कि ये जो आपका लाइन है AC पर एक पॉइंट है D, कहीं भी हो सकता है, और BC पर भी एक पॉइंट है, वो है E, तो हमने वो भी कहीं भी डिनोट कर लिया, और AE और BD को ज्वाइन कर लिया। वो करना ही था, क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना है वो AE स्क्वायर है, तो A और E को ज्वाइन करना होगा, और BD स्क्वायर को भी ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना है तो B और D को भी ज्वाइन करना है, AB और DE आपको प्रूव करना है, दैट इज AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो हमने इन्हें ज्वाइन भी कर लिया। अब आप देखो कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो प्रूव कैसे करोगे। बहुत आसान है, जो आपको प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को आप सिलेक्ट कर लो। AE स्क्वायर लाना है तो AE जिस भी ट्रायंगल में हो उस ट्रायंगल को आप ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट, इन राइट ट्रायंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है, AE ही है, AE स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर। तो यहाँ पे एक साइड देखिए आप है, कौन सी है, EC, और दूसरी साइड कौन सी है, AD। तो आप ले लो EC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर, ये आपका कोई इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दूसरा क्या लाना है, यहाँ पे देखिएगा टू प्रूफ में BD लाना है। तो अब आप BD वाला साइड ट्रायंगल सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप वहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, BCD में आपको क्या करना है, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लेंगे यहाँ भी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो यहाँ BD ही होगा ना, तो आप BD स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर, तो एक तो BC हो जाएगा, दूसरा CD हो जाएगा, तो आप लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इस दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है,
तो ऐड जब आप इसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दो अभी ट्रायंगल यहाँ टोटल डायग्राम में देखिए तो 4 ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल आपने ले लिया, दूसरा ट्रायंगल भी आपने ले लिया। अभी आपके पास और 2 ट्रायंगल बच रखे हैं। उसमें एक तो ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है कि नहीं, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो आप देखिए कौन सा है। तो चलो पहले आप ऐड कर लो, फिर आपको अपने आप पता चलेगा कि करना क्या है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो आप लेफ्ट हैंड में देखिए यहाँ पे आपका क्या है AE और यहाँ पे क्या है BD। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए। तो आप जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट हियर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड में तो यही प्रूव करना था, वो आ भी गया। अब राइट हैंड में देखिए आपका यहाँ पे क्या है EC स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिख लिया EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया AC स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड सेकेंड इक्वेशन में क्या है BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि AC और BC ये एक पेयर बन रहा है। ये पेयर आपका काम का है, और इसी तरह से दूसरा पेयर हम इसे पेयर बना के लिख ही देते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये एक पेयर हो गया। और दूसरा पेयर है आपका CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो दोनों पेयर बना दिए। अब आप डायग्राम में चला देखिए जरा AC स्क्वायर और BC स्क्वायर का सम क्या है। AC स्क्वायर आप जब देखेंगे तो AC आपका क्या है, AC आपका ये ट्रायंगल में है, ये साइड आप देखिए रेड कलर से जो मैंने इंडिकेट की, और जो दूसरा साइड है वो आपका क्या है BC। तो BC आपका बेस साइड है, ये वाला साइड। तो ये किसी भी राइट ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और बेस का रिलेशन क्या होता है पता है। यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए इन ट्रायंगल ABC में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आप जानते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था। ठीक है, और इसी तरह से एंड एक और आप जानते हो क्या, आपका जो नेक्स्ट पेयर है CD और EC को देखिए। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ कई सारे ट्रायंगल, तो CD देखिए, CD और EC। तो CD और EC के लिए तो आपका ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो आप क्या करो इसे ज्वाइन कर लो। देखिए मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, एक ये आपको मैंने ज्वाइन करके दे दिया, ध्यान से देखना, ये लिया और आपका ये ज्वाइन कर लिया। ये लीजिए, ये भी मैंने ज्वाइन कर दिया आपका। तो जब ये ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ED स्क्वायर आ जाएगा। EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ED स्क्वायर। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे वैसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया है, कि फिर से देख लो एक बार, ED स्क्वायर इक्वल टू EC प्लस CD है ना। तो ये आपका हो गया ED स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, वो भी मैंने लिख लिया। ये आपका वो समझ में तो नहीं आ रहा है, चलो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कहीं ना हो। ये आपका D था, CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर।
तो ये दोनों वैल्यू जो अभी अभी मैंने आपको बताई है, एक ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू, यहाँ आप पुट कर लीजिए। किस जगह पे पुट करेंगे? जो अभी पेयर बनाया था इस जगह पे और इस ग्रीन लाइन की जगह से। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप ये लिख लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की जगह आप ये वाला वैल्यू पुट करेंगे ई डी स्क्वायर। तो आप देखिए ना, यही तो आपको प्रूव करना था। तो जो प्रूव करना था वो तो आ ही गया है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ आपने केवल पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया था और आपका ये रिजल्ट। ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. Means dear, here we will find each altitude, means there are 3 altitudes in the triangle. So since it is equilateral triangle, so only here is need to find only one altitude. Since ABC is an equilateral triangle and given that AB equal to BC equal to AC equal to 2A, this is the length of all sides, then requirement to find the altitude of triangle ABC. So for this, draw CD perpendicular to AB, and this CD is also known as altitude. So our requirement to find the length of CD. So how can you find the length of CD? Here you can see that, and you know that if you draw perpendicular from the vertex C, then the baseline AB divided in two equal parts if it is an equilateral triangle. So you will write here, since ABC is an equilateral triangle, therefore perpendicular from C AB divided in two equal parts. AB divided in two equal parts. That is AD equal to BD equal to A. Now you can choose any one right angle triangle, either triangle ADC or triangle BDC. So now we will take in right triangle ADC by Pythagoras theorem. What you get? This theorem shows that what the square of hypotenuse, that is AC, and the sum of squares of other two sides, that is AD square and CD square, these are just equal. Means AC square equal to AD square plus CD square. So AC is the length of equilateral triangle, that is 2A,
and AD is the half length of AB, so you can write it only A. So you put all these value, that is AC means 2A whole square and plus equal to AD means only A whole square and CD is required. So you will get 2A square whole 2 square means 4 and A square means A square, and this is A square, so you transpose this to left side, that is minus A square equal to CD square. So what you get? 4A square minus A square means 3A square. This gives you CD square equal to 3A square. Now what about CD? Taking square root both side, so you will get square root of A square is only A and square root of 3 not possible, so you can write under root 3. So this is the altitude, so you can write altitude of triangle ABC. Therefore altitude of triangle ABC equal to A under root 3, and this is your answer. Now next question, number 4 here. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1 by 3 BC. Prove that 9AD square equal to 7AB square. Dear, this is the most important question for the examination of you. So enjoy the solution of this question. Given that an equilateral triangle ABC, and it is also given that a relation BD equal to 1 by 3 BC, and to prove that 9AD square equal to 7AB square. Dear, this is the most important question, so try to understand very well. So for construction, for required this proof, draw AP perpendicular to BC. BC पर हमने पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. अब चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो हियर इज गिवन दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इट मीन्स AB equal to, you will write here, since ABC is an equilateral triangle. Therefore, what you get? AB equal to BC equal to AC. All sides are equal in equilateral. If this triangle is an isosceles triangle, and here if perpendicular drawn from vertex, because all sides are equal, then this perpendicular AP bisect BC in two equal parts, that is AP equal to PC. Since ओके डियर, यहाँ क्या आप लिखेंगे? सिंस AP is perpendicular, AP is perpendicular to BC, therefore BP equal to PC equal to half of BC. ठीक है, P इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो P मिड पॉइंट होगा. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि P मिड पॉइंट होगा या नहीं. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये बेस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो AP इक्वल टू PC हो जाएगा. या फिर आप लिख सकते हो PC इक्वल टू हाफ ऑफ BC, या फिर लिख सकते हो BP इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ठीक है,
तो इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये पॉइंट भी लिख लिया, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड थिंग्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज गिवन दैट BD इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे आपको जो मिल ही गया है वो आप एक बार फिर से लिख लो, BP इक्वल टू 1/2 BC। इसको हम यूज करेंगे। और आपको क्या गिवन है? गिवन आपको पहले से ही है BD इक्वल टू 1/3 BC। BD आप देखिए ये पॉइंट B और D है डायग्राम में, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 1/3 BC गिवन ही है। 2 थिंग्स हो गया। अब इसके बाद एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। आप देखिए कि BD तो हमें दे ही दिया, कितना है आपका 1/3 BC। अब हमें DP की जरूरत और पड़ेगी। ये DP कितना होगा? तो DP के लिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा DP इक्वल टू, देखिए डायग्राम में DP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DP इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, है ना। BP माइनस BD तो लिख ही सकते हैं। DP इक्वल टू, DP का मतलब केवल इतना लाइन सेगमेंट, ये देखिए आप, ठीक है। इस DP को लिख सकते हैं BP माइनस BD। BP का मतलब आप देखिए, मैंने जो ये रेड लाइन से नहीं, आपका ब्लैक लाइन से ये लाइन ड्रॉ किया है, दिस, और माइनस हमने क्या किया? माइनस हमने कर लिया ये BD जो ब्लू लाइन है, तो ये DP हो जाएगा। ब्लैक लाइन माइनस येलो लाइन, ठीक है। तो ब्लैक लाइन कितना है? BP है, और येलो लाइन कितना है? BD है। तो बच कौन सा पार्ट गया? ग्रीन पार्ट, DP। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DP इक्वल टू BP माइनस BD, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे कि BD तो आपको 1/3 दिया ही है, और BP भी आपने अभी फाइंड करके लिखा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो BP का कितना वैल्यू है? 1/2 BC, और BD का कितना है? 1/3 BC। तो आप चाहो तो BC कॉमन ले लो। BC अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपका क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/3, फ्रैक्शन हो गया। LCM कितना आएगा? 6, और देखिए 3 यहाँ पे आएगा, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2। तो ये कुल मिला के ऐसे आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, ये LCM हो गया। तो 3 माइनस 2 कितना होगा? 1, तो 1/6, और BC ये वैल्यू कितना किसका आ गया? DP का। तो ये हो गया आपका DP इक्वल टू 1/6 BC। तो हमें ये 3 चीज़ें अभी हम लोगों ने पता कर ली। ये तीनों चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। चाहो तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इसे आप लिख लो इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों का अभी हम यूज करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम आपका दिया ही हुआ है, तो डायग्राम में आप क्लियर करके देख सकते हो कि डायग्राम में क्या दिया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हमने जो प्रूव क्या करना है? AD स्क्वायर लाना है, AD स्क्वायर। तो आप देखिए AD स्क्वायर, तो डायग्राम में देखिए AD तो ये है, तो हम क्या करेंगे? AD और जिस ट्राइंगल में आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल APD बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये आपका मैंने जो ग्रीन लाइन लगाया है सिंबल, ये क्या होगा? हाइपोटेनस। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड। तो
तो यहाँ पे DP आपकी दूसरी साइड बची और प्लस AP भी बच रही है, तो आपने लिख लिया AP स्क्वायर। अब AP तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपका क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, तो इस AP को आपको रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, इस AP को लेते हुए कोई एक और राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करिए। तो आप लिखेंगे, इसे आप डाल लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इन अगेन इन राइट ट्रायंगल, हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, आप देखो इसमें जिसमें AP आ रहा हो, AP आपका पॉइंट A ये है, APB राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ध्यान दीजिए। तो इन राइट ट्रायंगल APB, और यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये देखिए मैंने ग्रीन सिंबल लगाया, ये ग्रीन लाइन AB ये हाइपोटेनस होगा। तो आप लिखिए यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर और माइनस AP और प्लस AP स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस AP स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 5, ठीक है। अब आपको AP यहाँ से हटाना है, तो AP या तो आप ये AP का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को ऐसा करने से, लेफ्ट हैंड में देखिए तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। राइट हैंड में देखिए तो DP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, और AP स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये AP स्क्वायर माइनस का, ये AP स्क्वायर प्लस का, तो वो हो जाएगा कैंसिल, तो वो हमने नहीं लिखा। अब आप देखिए कि यहाँ लेफ्ट हैंड में जो आ गया वो तो आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट हैंड में देखिए DP का वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ था, DP का वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 3 में ये लिखा है, रेड लाइन यहाँ मैंने खींच दी। तो DP का वैल्यू लिख दीजिए 1/6 BC, तो 1/6 BC आपने ये DP का वैल्यू लिख दिया, और क्या है ये स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस BP का भी वैल्यू आप हम लोगों ने पहले फाइंड किया था इसीलिए। तो देखिए BP का वैल्यू कितना है, 1/2 BC है, तो BP का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, 1/2 BC, 1/2 BC, ये भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लिया। और ये आपने कहाँ से वैल्यू पुट किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कहाँ से 3 से, 1 and 3, तो ये वैल्यू आपने पुट कर लिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/36, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, और BC स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और BC स्क्वायर ये भी हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ BC स्क्वायर तो आ गया कॉमन, बचेगा क्या, 1/36 माइनस 1/4, ठीक है। तो 1/4 अगर बचेगा तो इसका एलसीएम ले लो, तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, BC स्क्वायर एलसीएम तो 36 ही आएगा, तो 36 बन जा तो 36 ही रहेगा, तो आपने यहाँ तो 1 ही लिखा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36, तो माइनस यहाँ आएगा 9, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि जब आप -9 करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस हो गया 8/36, और BC स्क्वायर आपका लिखा था वो भी मैंने लिख दिया। अब ये आपका कुछ कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल कर ही दीजिए। तो देखो ये किससे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो क्या आ जाएगा, -2/3 BC स्क्वायर,
और लेफ्ट हैंड में चल क्या रहा है, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर चल रहा है। ये देखिए ध्यान से, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे ले आइए, पुट नहीं करना है, यहाँ पे वो आएगा ही। ए डी स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ए डी स्क्वायर आप लिखेंगे ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ही है। तो ये आपका हो गया। अब आप देखिए ध्यान से कि ये जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में 3 आप हटा लीजिए तो क्या होगा, ये सॉरी मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा, 9 है ना, तो 9 लिखना है यहाँ पे। यहाँ जो डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है तो 9 लिखना होगा। ये 9 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 आप जब मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब ये इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो, आपका तब ये स्टेप हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए एक बात को, क्योंकि ये जो ट्राइंगल दिया था वो क्या था, इक्विलैटरल ट्राइंगल था। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी सी की जगह आप क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, चूंकि आपको अच्छे से पता है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे इसीलिए ये बी सी की जगह ए बी रिप्लेस कर दिया। अब इस ए बी को आप यहीं रहने दीजिए, 9 ए बी को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 9 ए बी को जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखिए क्या आपको मिलेगा, 9 ए डी स्क्वायर तो लेफ्ट में ही रहेगा, और ये हो गया 9 ए डी स्क्वायर जब उधर ट्रांसपोज होके जाएगा तो प्लस का हो गया 9 ए बी स्क्वायर, और माइनस 2 ए बी स्क्वायर आपका पहले से ही है। तो 9 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 ए बी स्क्वायर, है ना। और इधर आपका जो लेफ्ट हैंड में है वो क्या है, 9 ए डी स्क्वायर। तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, ये तो आपको शायद रिजल्ट लाना ही था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो यही तो आपको प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था। आप देखो इसमें ज़्यादा कुछ हमने यूज नहीं किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, और ये 3 वैल्यू हमने जरूर पता की थी स्टार्टिंग में। तो इन वैल्यू को आपको पहले पता करना ही पड़ेगा। कौन कौन सा वैल्यू, तो सबसे पहले तो आपने ये लिखा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी बिकॉज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बी पी इक्वल टू पी सी इक्वल टू हाफ बी सी लिख लिया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बी पी इक्वल टू हाफ बी सी की ज़रूरत पड़ी भी थी। और बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी इसलिए दिया है चूँकि आप डी पी पता कर लो। तो डी पी आप देख सकते हो, डी पी आपका ये है, ये पार्ट केवल डीपी है ना, जो मैंने ये लाइन खींच रखी है ब्लैक। तो इस डीपी को आप लिख सकते हो पूरा बीपी माइनस बीडी, तो डीपी हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट किया तो 1/6 बीसी आ गया डीपी का वैल्यू। अब आपने एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल नंबर 1, आप देखो ये मैंने डाल दिया, और फिर दूसरी बार ये ट्रायंगल पूरा ले लिया, ये आपका ट्रायंगल नंबर 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके आपने वैल्यू पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप इसका प्रूफ कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।